Praise the name of the Lord. Hallelujah. Shalom, shalom, shalom. Hallelujah. Glory and power and strength and majesty unto the name of the Lord. Jesus of Nazareth, we lift up your holy name. We worship you. We exalt you. We magnify you, Lord. We sing your praise, Lord. Hallelujah. You are worthy to be praised, King of glory. You are worthy to be exalted. Hallelujah. We bless you, Jesus of Nazareth. We bless your holy name. We bless your holy name. Bless your holy name. Bless your holy name. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. We praise you, Lord. We worship you, Lord. We glorify you. Hallelujah. धन्यवाद हो. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lord Jesus, we bless you. Lord Jesus, we magnify you. Lord Jesus, we surround your throne of grace and mercy. For you are very present help in time of need. And you admonish us by saying, call upon me in the days of trouble. And I will hear thee, and I will shew thee the thing that thou knowest not. So, Lord, we come to you so that you may unravel the deep things which are only revealed by the Spirit, and the natural man cannot receive them. He is incapacitated to receive them. Through your Spirit you unravel. Father, we draw nigh unto you. And Lord, you draw nigh unto us. As we draw nigh unto you, Lord, you draw nigh unto us. We draw nigh unto you, Father. You draw nigh unto us. Lord, we draw nigh unto you. You draw nigh unto us, Lord God. Hallelujah. Lord, we rush unto your throne. We hold unto the horns of the altar, Lord. Hallelujah. You are a respite. You are a stronghold. You are a high tower. You are a hiding place. You rescue us, Lord. You keep us safe from every howling storm, tempest, blizzard, hurricane that beat against the deck of a life. You protect us, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. चाहे किसी की ना हो हलाकत, तौबा की नौबत तक लाता, चाहे किसी की ना हो हलाकत, तौबा की नौबत तक लाता, जो ईमान यसु पर लाता, वो अब्दी जीवन मुफ्त में पाता, जो ईमान यसु पर लाता, अब्दी जीवन मुफ्त में पाता। मेरी जान का लंगर है,
वो मेरी जान का लंगर है, लंगर है। बदलता सबकी सीरत है, सीरत है। सुंदर मेरा यीशु सुंदर है, सुंदर है। सुंदर 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 यीशु है। सुंदर 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 यीशु है। Lord Jesus, I lift up Amarjeet Kaur and her family before your throne of grace. I pray for your hand upon her and her household, upon her husband, particularly upon her daughter and her daughter's daughters. Lord, may you bless Sabi Surjeet. May you bless his father and mother. Lord, may his sibling and may his relatives come to know you, Lord Jesus, I pray. I pray that you bless Sarah, that your hand be upon her, Lord, upon her household. May you bless Bahadur Singh Akash. Lord, let your hand be upon him. I pray for Daljit Singh, for your anointing and favor to rest upon this man. I pray for Sister Jyoti Angelina, particularly for her brother. I pray that your spirit will move in our home, in our house. Your light will pierce the darkness, Lord. Every genetic curse that jumps from one generation to the other will be broken, will be revoked in the name of Jesus. And bless our mother. I also pray concerning the land, issue, Lord, that you will bless your daughter Jyoti Angelina and her ministry to the needy and the downtrodden, to the very less unfortunate, Lord. Bless that work, I pray. Our Lord, I pray for Lena Davidson. Bless her household. Bless her children, I pray, her entire family. Lord, use this household for your glory, I pray thee. Bless Jasveer Singh Surinder. Place your hand upon him, Lord. Lord, I pray for Ruby Sanghera, that you anoint her, that you touch her husband and heal him, even her mother-in-law, and Father, her sister Taljinder and her household. May your hand be upon them in the mighty name of Jesus, I pray. Father, I pray for Gurpreet Singh. Bless him, anoint him. Lord, place your right righteous hand upon him. Bless Brother Ravi Prakash Gupta, I pray. Bless his wife. Bless his children, family, everyone that is related to this man. I pray, Father, that you would open up your heavenly treasures and you shower your blessing upon this man. I speak the blessing of Abraham over Ravi Prakash Gupta. And I speak the blessing of Abraham over Lalit Mehra in Delhi. Bless this man. Bless with heavenly anointing. Bless with your divine favor. Draw his wife unto you, Lord. I pray for the salvation of this dear brother's wife, Brother Lalit's wife, that you will draw her into your kingdom. And her children, Lord, that you will grant them wisdom and understanding, Lord, that his in-laws will turn to you, I pray thee, Father. Lord, I pray for Vinita Chopra from Australia, that your hand be upon her husband, upon her family, that you teach them, Lord, that you groom them, that you raise them up, Lord, that you teach them the deep things of your spirit. Hallelujah. I pray, Father, that you prepare them for the work that you want them to do before you come to take your bride home. Bless Daisy V.S. Bless her family. May your hand be upon Daisy V.S. I speak your favor. Hallelujah. Lord, bless Brother Raman Khan. Bless his wife, Reena Khan. Bless his two young daughters. Lord, use this man for your glory. Keep him under the palms that are scarred, Lord, under your hand.
and his mother. Bless her. Bless his sibling, his brothers, and draw them to you, Lord, I pray thee. I pray for Robbie John. Bless Robbie John. Bless his father and mother. Bless his sibling, his brother who is in Italy. May your hand be upon his whole household, I pray, Father. Father, bless Emmanuel Sahota and his children and his wife. Let your hand be over Brother Emmanuel Sahota, I pray. Over his in-laws' family, over his relatives, Father. Hallelujah. I pray, I cover them all under your blood. I pray for Sunita Guria Kanswar. Bless her. Stretch forth your hand of blessing over her. Thank you, Lord. We bless you, Jesus. चाहने वालों की हड्डियों की खुद खालिक रखवाली करे, जो डरते अपने खालिक से उनको अपनी रूह से भरे, वो मेरी जान का लंगर है, लंगर है। बदलता सबकी सीरत है, सीरत है। सुंदर मेरा यीशु सुंदर है, सुंदर है। Hallelujah. Lord, open your word as we meditate on your word. Show us your face, show us your glory, and draw us closer to you, Lord. We bless you. We give you praise, Lord. In Jesus' name, amen. Hallelujah. आइए परमेश्वर के वचन पे मनन करें। हालेलुया। 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 मैं आपको Hebrews epistle written to the Hebrews epistle written to the Hebrews, या इस पत्री का टाइटल Hebrews ये बताता है कि ये पत्री लिखी गई इब्रानी विश्वासियों के लिए, जूइश बिलीवर्स के लिए, मसियानिक जूस के लिए, those who were scattered at different places. Hallelujah. इसकी ऑथरशिप पे बहुत डिबेट होती है. Who wrote it? Let's not get into that who wrote it. But we know that the Holy Spirit has written it. Holy Spirit used human vessels, but it is ultimately God who wrote His word. Hallelujah. तो मैं उसके 4th चैप्टर में आपको लेके चलता हूँ. इब्रानियों 4 चैप्टर नंबर 4 एंड वर्स नंबर 13 आपके लिए पढ़ता हूँ. सुनिए, इब्रानियों 4 का 13. And not a creature exists that is concealed from his sight, but all things are open and exposed, naked and defenseless to the eyes of him with whom we have to do. Hallelujah. इब्रानियों की पत्री लिखने वाला 4 के 13 में लिखता है कि पृथ्वी के ऊपर या पृथ्वी के नीचे या पृथ्वी के ऊपर कोई भी ऐसी रचना नहीं है, क्रिएशन नहीं है जो परमेश्वर को दिखाई ना देती हो. जीवते परमेश्वर की विराट आँखों से कोई भी चीज़ पर्दे में छिप नहीं सकती. यहोवा परमेश्वर पाताल की गहराइयों को भी देखता है और लिखा है ऑल थिंग्स आर ओपन एंड एक्सपोज्ड. Everything is open and exposed before the Lord God. Hallelujah. God sees everything. God continually sees everything. And mankind and everything in the creation is naked and defenseless. सब कुछ परमेश्वर के आगे बिना पर्दा है, नेकेड है, डिफेंसलेस है. आप कोई भी चीज़ जीवित परमेश्वर से छिपा नहीं सकते. यीशु मसीह की अग्नि से धधकती हुई आँखें
प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना देखता है अग्निमयी आंखें प्रभु यीशु मसीह की, वो आपके जीवन के हर पहलू को देखती हैं। आपके जीवन में कोई चीज़ यीशु मसीह की आंख से छिपी नहीं। इस ब्रह्मांड के किसी भी कोने में, पृथ्वी की गहराइयों में, आकाश की बुलंदियों में कोई ऐसी शय नहीं जिसे यीशु मसीह नहीं देखता। सब कुछ यीशु मसीह की आंखों के आगे बेपर्दा है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, योर सिंस विल फाइंड यू आउट। तेरे पाप तुझे ढूंढ लेंगे। यदि वो यीशु मसीह के अटोनिंग ब्लड के द्वारा धुले नहीं, यीशु मसीह के ब्लड की अटोनमेंट के नीचे नहीं लाए गए, तो आप बहुत बड़ी ट्रबल में होंगे। योर लाइफ विल बी इन जेपडी एज यू विल स्टैंड बिफोर गॉड, बिकॉज योर सिन विल फाइंड यू आउट। परमेश्वर को दूतों को भेजने की जरूरत नहीं है पापियों को पकड़ के उसके सन्मुख लाने के लिए। मनुष्य के सिन, दिस इज टॉकिंग अबाउट योर जीनोम, योर डीएनए। योर डीएनए कंटेन्स ऑल द मेमोरी ऑफ ऑल यू डिड, नॉट ऑल you did, but all your father did, your father's father did, your mother did, your mother's mother did, and their ancestors did. It's all coded inside your DNA. आपके डीएनए में से निकल के सारा डाटा परमेश्वर के सन्मुख खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। अगर आप 4 अध्याय पढ़ेंगे ध्यान से, इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय में, इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय में एक विषय पे प्रभु का दास, मेरा विश्वास है कि प्रेरित पौलुस ने ये पत्री लिखी है। खैर वो आज विषय नहीं हमारा मनन का। तो 4 अध्याय में अगर आप अध्ययन करेंगे गहराई से, तो हम पाते हैं कि प्रेरित यहाँ पे बात कर रहा है रेस्ट की, शबात की, सबैटिकल की, सबत की। सुनिए ध्यान से। आर्ग्यूमेंट्स आर बीइंग प्रेजेंटेड अबाउट सबैटिकल, अबाउट द रेस्ट, द रेस्ट ऑफ गॉड, परमेश्वर की शबात, परमेश्वर का सबत। ऑब्वियसली ये जो विश्वासी हैं, जूइश लोग हैं, मसीह में आए हैं, मसीहानिक जूज हैं, दे आर सैबत कीपिंग बिलीवर्स। दे ऑब्जर्व शबात, वो सबत मानते हैं, सबत को रखते हैं, और शायद सबत के विषय में बहुत जेलस हैं और एक्सट्रीमली ओवरली राइचस हैं, ज़ील से भरे हैं। प्रेरित पौलुस इस पत्री के अंदर ये बताना चाह रहा है, प्रेरित पौलुस ये बताना चाह रहा है कि सबत जो है, सबैटिकल जो है, शबात जो है, इट्स नॉट अबाउट अ डे, इट इज अबाउट अ पर्सन। सबत केवल दिन नहीं है, सबत एक व्यक्ति है। इट इज द पर्सन ऑफ द लॉर्ड जीसस ऑफ नाज़रेथ। विश्वासियों की, जिन्होंने यीशु मसीह के लहू से नया जन्म पाया है, जो परमेश्वर के अविनाशी बीज और पवित्र आत्मा के निर्मल जल से जन्मे हैं, जिनके अंदर यीशु मसीह का जिनोम है, उनकी रेस्ट, उनकी सबैटिकल, उनकी शबात इज नॉट ए डे, इट इज ए पर्सन। हियर मी आउट क्लियरली। मैं आपको बताना चाहता हूं, हाइपर जूइशिज्म इज वेरी वेरी डेंजरस। That is very deadly Zionism that is creeping in the churches. आपको मुकम्मल रीति से समझना है पूरे कलाम को, वरना आप गलतियों की पत्री पढ़ लीजिए, फिर जूडाइज्म में फंस जाएंगे। एक थिन लाइन है बिटवीन द रियल जूइशनेस एंड द जुडाइज्म। द जुडाइजर्स, प्रेरित पौलुस गलतियों की पत्री में बात करता, कहता हु बिविच्ड यू, यू गलेशियंस, यू फूलिश गलेशियंस, हु बिविच्ड यू। पूरी पत्री इसी आर्ग्यूमेंट के ऊपर लिखी गई है। तो रेस्ट एक पर्सन है। मार्था, लाजर की बहन, यीशु मसीह के आगे खड़ी है। यीशु मसीह उससे कहता है, वो कहती है अगर आप यहाँ होते तो मेरा भाई ना मरता, क्योंकि मार्था ये समझती है कि यीशु मसीह रोगियों को तो चंगा कर सकता है, उसने देखा है रोगी चंगे करते, दुष्ट आत्मा निकालते, लेकिन अब उसका भाई मर गया है। मोरोवर मरे को 4 दिन हो चुके हैं, वो डिटीरियोरेट हो चुका है, क्योंकि जूस ये मानते थे कि 3 दिन तक मरने वाले व्यक्ति की आत्मा आसपास घूमती है और 3 दिन तक ही कैन कम बैक टू लाइफ। इसलिए यीशु मसीह ने जूइश लोगों के इस मिथ को बस्ट किया।
यीशु मसीह जानबूझ के चौथे दिन आया जब यहूदी लोगों की परंपरा, विचारधारा, दकियानूसी बातों के लिहाज से इम्पॉसिबल था लाजर का जी उठना। फोर्थ डे आया यीशु मसीह, 4 डे हो गए हैं उसको मरे को, तब आया जब ये बिल्कुल इम्पॉसिबल था। तो मार्था उसके आगे खड़ी है, परमेश्वर के देहधारी शब्द के आगे, सृष्टि के रचयिता के आगे, ब्रह्मांड को बनाने वाले, आकाश को तंबू की तरह तानने वाले, असंख्य तारों से उसका श्रृंगार करने वाले, सूर्य को गतिमान करने वाले, चांद तारों को रोशनी देने वाले, समुद्रों के पानी को चुल्ली में भरने वाले, पहाड़ जिसके आगे नाचते हैं, टीले जिसका भजन गाते हैं, भोर के तारे हालेलुया उसके लिए गाते हैं, और बिनाया एलोहीम जय जयकार करते हैं, कायनात हालेलुया जिसके हजूर में एक नगमा गाती है। वो महाप्रतापी परमेश्वर जो पवन को पंख बना के उड़ता है, हालेलुया, जो अगम्य ज्योतियों में वास करता है, जिसे मनुष्य देख के जीवित नहीं रह सकता, वो महाप्रतापी परमेश्वर इंसान की चमड़ी की जिल्द में ढका हुआ खड़ा है। और मार्था केवल ये समझती है अब तो मरे को 4 दिन हो गए हैं, अब प्रभु आप क्या कर सकते हो, काश आप पहले आते तो मेरा भाई ना मरता। यीशु मसीह कहते हैं मार्था तेरा भाई जी उठेगा। लेकिन मार्था यीशु मसीह से अपनी थियोलॉजी डिस्कस करती है। यीशु मसीह को कहती मैं जानती हूँ मेरा भाई उस दिन जी उठेगा, क्योंकि उसने यहूदी मत में सीखा है डे ऑफ रेजरेक्शन, क़यामत का दिन, कि एक दिन सारे मुर्दे परमेश्वर के आगे खड़े होंगे। तो उसके लिए रेजरेक्शन एक दिन है, इट्स अ डे। उसके लिए रेजरेक्शन उसकी थियोलॉजी है, उसके लिए रेजरेक्शन उसका अपना क्रीड एंड डॉगमा है। उसके लिए मुर्दों में से जी उठना, रेजरेक्शन उसकी अपने हर्मेन्यूटिक्स के टेंटिकल्स हैं। लेकिन वो जो उसके सन्मुख खड़ा है वो उससे कहता है एक अद्भुत स्टेटमेंट में, वो कहता आई एम द रेजरेक्शन एंड आई एम द लाइफ। जीवन भी मैं हूँ, ज़ोए काइंड लाइफ, और मुर्दों में से जी उठना भी मैं हूँ। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठना है, पुनरुत्थान है। यीशु मसीह पुनर्जन्म नहीं है, सुन लीजिए, पुनरुत्थान और पुनर्जन्म में बहुत फर्क है। यीशु मसीह पुनरुत्थान है। पुनरुत्थान की शक्ति किसी के पास नहीं सिवाय सृष्टि के रचयिता के पास। इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी शक्ति नहीं जिसके हाथ में पुनरुत्थान की, रेजरेक्शन की पावर हो। रेजरेक्शन की सामर्थ केवल मृतकों में से जी उठे यीशु मसीह के हाथ में है। हालेलुया, वही पुनरुत्थान कर सकता है, वही मुर्दों को जीवन दे सकता है। कोई ब्रह्मांड में मुर्दों को जीवन देने की सामर्थ नहीं रखता है। हालेलुया, यीशु मसीह कह रहे हैं पुनरुत्थान कोई इवेंट नहीं है, मुर्दों में से जी उठना कोई घटना नहीं है, मुर्दों में से जी उठना कोई थियोलॉजी नहीं है, मुर्दों में से जी उठना कोई डे नहीं है, दिन नहीं है दैट गॉड हैज सेट अपार्ट। आई एम द रेजरेक्शन, पुनरुत्थान मैं हूं। हालेलुया, देखिए कितनी जबरदस्त कंटिन्यूटी चल रही है। एक सब्जेक्ट पे प्रभु का बंदा वचन लिख रहा है और स्टेप बाय स्टेप, प्रीसेप्ट अपॉन प्रीसेप्ट एंड लाइन अपॉन लाइन, हाउ ही इज एक्सप्लेनिंग द वर्ड। हालेलुया, दैट Sabbath is not a day, Sabbath is a person. It is the person of the Lord Jesus of Nazareth. Your rest is in the person. Your rest is not in observing a ritual, but your rest is inside a person if you have relationship with that person. और उसका नाम है यहूशा मशीयाक, यीशु मसीह नासरी। 4:12, इब्रानियों 4:12 देखिए। For the word of God that speaks is alive and full of power, making it active, operative, energizing and effective. This is the amplified version that I am reading. For the word of God that speaks is alive, full of power, making it active, operative, energizing and effective. परमेश्वर का वचन जो बोलता है, ये जो कलाम मैं आपसे बांट रहा हूँ, ये वो कलाम है जो बोल रहा है। ये वो कलाम नहीं है, मैं आपको ये नहीं कह रहा बाइबल में लिखा है, बाइबल में ये लिखा है, बाइबल में ये, मैं ये नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूँ आपको जिंदा कलाम जो अभी इस घड़ी आपसे बोल रहा है। हालेलुया, इट्स लिविंग। ये कोई ट्रेडिशन नहीं है, रिचुअल नहीं है, ये कोई सरमन नहीं है थियोलॉजी का,
ये परमेश्वर की जीवित आवाज़ जो अब इस घड़ी बात कर रही है। फॉर द वर्ड ऑफ गॉड दैट स्पीक्स, प्रेजेंट टेंस के अंदर इस ग्रामेटिकली इस वर्ड्स को लिखा गया है। प्रेजेंट टेंस में वर्तमान काल के अंदर अभी इस घड़ी ये कलाम बोल रहा है। हालेलुया, बोल रहा है। ये जीवित है, सामर्थ से भरा है, मेकिंग इट एक्टिव, और पूरी तरह से कार्यशील है, ऑपरेटिव है, काम कर रहा है, एनर्जाइजिंग, ये कुवत दे रहा है, इससे कुवत आ रही है सुनने से, एंड इज इफेक्टिव, और बड़ा शक्तिशाली है। इट इज़ शार्पर देन एनी टू एजेड सोर्ड। ये दो-धारी तलवार नहीं है, दो-धारी तलवार से कहीं ज़्यादा चोखा है, अर्थात तेज है। अगर खुदा का कलाम दो-धारी तलवार है, दो-धारी तलवार से चोखा है, तो आप जान लीजिए आपको काटेगा। तलवार का कोई और काम नहीं होता, तलवार काटती है, सेपरेट करती है। कलाम की तलवार आपके अंदर काम करेगी अलग करने के लिए, आपकी देह को, आपकी देह की वासना को, आपकी देह की आवाज़ को, आपकी शरीर की ख्वाहिशों को, आँखों की अभिलाषा को, जीविका के घमंड को, तीनों को चीरेगी। आपके शरीर को, उसकी फैकल्टीज़ को अलग करेगी, और आपकी जो जान है, जो आपकी आत्मा के संग चिपकी हुई है, आपकी सोल को अलग कर देगी। जब कलाम आएगा आपको अपनी आत्मा अलग महसूस होगी और अपनी जान अलग महसूस होगी। जब जीवित कलाम आएगा, सबसे बड़ा चमत्कार ये होगा, आपको सच्ची परमेश्वर की आवाज़ सुनाई देनी शुरू होगी। बहुत से लोग कहते हैं प्रभु ने मेरे से बात की, प्रभु ने मुझसे ये कहा, प्रभु ने मेरे से ये बात की। बहुत बार वो लोग प्रभु की आवाज़ नहीं सुन रहे होते, वो अपनी सोल की आवाज़ सुनते हैं, स्पिरिट की भी नहीं सुनते। आपकी एक रिक्रिएटेड स्पिरिट है, मुर्दों में से जिंदा की गई आत्मा है, उस आत्मा के अंदर पवित्र आत्मा वास करता है। पवित्र आत्मा आपका संचालन करेगा आपकी आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा कभी भी आपका संचालन आपकी सोल से नहीं करेगा। आपकी सोल, उसे सुखोए कहा गया ग्रीक में, जिससे साइकोलॉजी वर्ड निकलता है। आपके अंदर एक साइकिक दुनिया है, साइकोलॉजिकल वर्ल्ड है आपके अंदर। आपका माइंड, विल, इमोशनल, आपकी रैशनल थिंकिंग, आपकी इंटेलेक्ट, आपका आर्ट, लर्निंग, सब कुछ वहीं वास करता है। उसके द्वारा परमेश्वर आपको नहीं चलाएगा, आपको नहीं लीड करेगा। परमेश्वर आत्मा है, वो आपकी मुर्दों में से पुनर्जीवित की गई आत्मा के अंदर वास करेगा और आत्मा में बोलेगा। लेकिन आत्मा में प्रभु की आवाज़ आपको सुनाई इसलिए नहीं देती क्योंकि आपकी सोल हैज़ आउटग्रोन द स्पिरिट। आपकी जान जो है वो ज़्यादा हट्टी कट्टी है आपकी आत्मा से। आपकी आत्मा निर्बल है, दुर्बल है। आपकी आत्मा के ऊपर हावी होके बैठी है आपकी जान। तो सच्चा कलाम आपकी जान को अलग करेगा, फिर आपको सच्ची आवाज़ सुनाई देगी। झूठ मूठ में नहीं बोलेंगे आप, प्रभु ने मुझसे कहा, या आपके इमोशन ही आपसे बात करेंगे और आप कह देंगे प्रभु ने मुझसे कहा। तो कलाम आएगा एक अद्भुत काम करने के लिए। हालेलुया, एक अद्भुत काम करेगा। हालेलुया, अद्भुत काम, आपको उसकी आवाज़ सुनाई देगी। वो जो सब कुछ देख रहा है, 13 वचन में लिखा है, सब कुछ उसके आगे बेपर्दा है, सब कुछ नंगा हुआ है उसके आगे। और ये कलाम जो आपसे बोलेगा, ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है। ग्रीक वर्ड है थियोस नस्टस, जिसका मतलब थियोस परमेश्वर, नस्टस उसकी श्वास है, परमेश्वर की फूंक है। जो श्वास है परमेश्वर की, वो है ये कलाम। हालेलुया, हालेलुया, कितना अद्भुत काम ये कलाम आपके जीवन में करता है। और इसके 14 वचन में आइए, क्या लिखा है? 14 वचन पढ़िए। यहाँ लिखा है, इन एज मच देन एज वी हैव अ ग्रेट हाई प्रीस्ट हु हैज़ ऑलरेडी असेंडेड एंड पास थ्रू द हेवंस, जीसस द सन ऑफ गॉड, लेट अस होल्ड फास्ट अ कन्फेशन ऑफ फेथ इन हिम। क्या कहता है आगे लिखने वाला? पूरी सिस्टेमेटिकली बात करता आ रहा है शब्द की। कहता है कि हमारा महायाजक कौन है? हमारा महायाजक यीशु मसीह। मैं आपको प्रीस्टहुड के ऊपर टीच कर रहा था, 2-3 दिन प्रीस्टहुड के ऊपर टीचिंग दिया है। हमारा हाई प्रीस्ट है जीसस ऑफ नाज़रेथ, वो पिता के दाहिने हाथ है। अब स्वर्गीय जो टेम्पल है उसके अंदर जो मिनिस्ट्री है वो हारून के गोत्र के याजक नहीं कर रहे, वो मल्कीसिदक सरीखा महायाजक करता है। जो हारून सरीखे
याजक हैं, वो 24 एल्डर्स हैं यहोवा के सिंहासन के आगे, लेकिन अति पवित्र स्थान में पहुंच है मलकीसदक की, यीशु मसीह नासरी की। हालेलुया। वो क्या करता है, वो असेंडेड। आपको मालूम लूसीफेरियन की फॉल्स डॉक्ट्रिन क्या है? लूसीफेरियन और डार्क कल्ट वाले वो जीसस को असेंडेड मास्टर बोलते हैं इस वचन में से। Hebrews 4:14, Jesus ascended in heaven. They say that Jesus is an ascended master, but he is not the ascended master. He is one of the ascended masters. And all the ascended masters will visit the earth again, from where they derive a theology of aliens who are coming back on the earth. And they say that they are a creator. They created this planet. They are coming back. क्योंकि पृथ्वी फिर कैओस में जा रही है। खैर, मैं उधर नहीं जाना चाहता। तो वचन में लिखा है कि हमारा महायाजक है वहाँ पे। आप अपनी प्रार्थना स्वर्ग में जब भेज रहे हो तो स्वर्ग में कोई है आपकी प्रार्थनाएं रिसीव करने के लिए। हालेलुया। आपका अपना है वहाँ पे। एंड ही इज़ द गो इन बिटवीन, जिसे बिचवई या बिचोला कहते हैं, मीडिएटर कहते हैं अंग्रेजी में। और वो हमारा हाई प्रीस्ट है, और वो पिता के दाहिने हाथ है, और वो स्वर्गीय सेंचुरी में मिनिस्ट्री करता है। हालेलुया, हालेलुया। और वचन में क्या लिखा है? हम क्या करें? लेट अस होल्ड फास्ट आवर कन्फेशन ऑफ फेथ इन हिम। हम अपने मुंह के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। क्या है हमारे मुंह का अंगीकार? हमारे मुंह का प्रथम अंगीकार ये था, स्वर्गीय पिता, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम पे विश्वास करता हूँ। मैं अपने पापों, अपने अपराधों का अंगीकार करता हूँ। स्वर्गीय पिता, मैं अपने कामों से, अच्छे भले कामों से, अपनी सामर्थ से अपने आप को बचा नहीं सकता। मुझे एक मोक्षदाता की ज़रूरत है। और स्वर्गीय पिता, आपने एक मुक्तिदाता भेजा है जिसने मेरे पाप, मेरी लानतें, मेरे अपराध, मेरे श्राप अपने ऊपर लिए और मेरे लिए बलिदान हुआ। वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन बाद मृतकों में से जी उठा है। मैं उस यीशु मसीह के नाम पे विश्वास करता हूँ। मेरे जीवन को अपने लहू से धो दीजिए यीशु मसीह। मैं आपको अपने जीवन में निमंत्रण देता हूँ, मुझे अपनी आत्मा से भरिए। ये आपका पहला कन्फेशन था। ऐसे आपने कई कन्फेशन किए अलग अलग। हर एक प्रार्थना कन्फेशन है। जब आप प्रार्थना करते हो वचन बोल बोल के, वो आपका अंगीकार है। आप वचन बोल के प्रभु के आगे प्रार्थना करते हो। प्रभु, डॉक्टर आपको बोलते हैं आपकी डेथ हो जाएगी, आपको कैंसर है, स्टेज 4 है। आप बोलते हैं नो नो, आई विल नॉट डाई बट आई शैल लिव एंड आई शैल डिक्लेयर द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड, बिकॉज माई गॉड सेज he will bless me, he will give me long life. He says, with long life will I satiate thee and shew thee my salvation, Psalm 91। तो आप वचन कोट करते हो। वचन कहता है he forgives all your iniquities and heals all your diseases। वो तेरे सारे धर्म को क्षमा करता, तेरे सब रोगों से तुझे चंगा करता है। आप अंगीकार करते हो परमेश्वर का कलाम, मैं यहोवा तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। जो रोग मैंने मिस्रियों पे भेजे वो मैं तेरे ऊपर नहीं भेजूंगा। आप अपने आप को परमेश्वर की वाचा में रखते हो, ले आते हो वाचा में, और अपना जीवन पूरी रीति से समर्पण करते हो और पाप से परित्याग करते हो। अधर्म, पाप, गंदे लुचपन के काम त्यागते हो, प्रभु के वचन को थामते हो और मुँह से अंगीकार करते हो। तो आपका महायाजक उधर आपके लिए विनती करनी शुरू करता है। तो अपने मुंह के अंगीकार को थाम के रखिए, उसे चेंज मत कीजिए। जैसे आपने फिर पाप किया, आपने अंगीकार चेंज कर दिया। समझ रहे हैं आप? जैसे आप अधर्म में फिर गए, आपका अंगीकार टूट गया, योर कन्फेशन चेंज हो गया। यीशु मसीह हमारे कन्फेशन को स्वर्ग में पिता के आगे रख रहा है। हालेलुया। तो क्या कहता है वचन? 15 वचन पढ़ें। 15 वचन कहता है, फॉर वी डू नॉट हैव ए हाई प्रीस्ट हु इज अनेबल to understand and sympathize and have a shared feeling with the weaknesses and infirmities and inability to the assaults of temptation, but the one who has been tempted in every respect as we are, yet without sinning। Hallelujah। KJV में लिखा है, we do not have a high priest who cannot be touched by the feeling of our infirmity। He can feel what you feel। We have a God who can feel। वी डू नॉट हैव, हमारा परमेश्वर कोई डिस्टेंट डियटी नहीं है
जो एक वामरोले की तरह है, जो एक केवल ज्योति की तरह ही है। हमारा जो मुक्तिदाता है इज़ अ पर्सन। ये हमारी सबत है, जीसस ये एक पर्सन है। और क्या लिखा है, ही कैन बी टच्ड बाय द फीलिंग ऑफ एन इन्फर्मिटी। जो हम फील करते हैं, महसूस करते हैं, जो मुसीबत, दुख, परेशानी, जो एहसास हमें होते हैं, जो लाइफ हमें इमोट करने के लिए विवश करती है, वो यीशु मसीह जानता है। वो उसमें से होके गुजरा है। हालेलुया। वो स्वर्ग में हमें देख रहा है, स्वर्ग से हमें देख रहा है, लेकिन वो पृथ्वी पे से इन सब चीज़ों में से होके गुजरा है। कोई व्यक्ति यीशु मसीह को ये नहीं कह सकता तू ऊपर बैठा क्या जाने इंसानों पे क्या गुजरी है। यीशु मसीह को ये नहीं कह सकता कोई व्यक्ति। वो जानता है कि हम मिट्टी हैं। डिस्पाइट ऑल दिस, 16 वचन पढ़ें, वो हमें इनविटेशन देता है। क्या इनविटेशन देता है? कम अनटू मी। पढ़िए 16 वचन। लेट अस देयरफॉर fearlessly and confidently and boldly draw near to the throne of grace। वो हमें इनविटेशन दे रहा है, आओ। बाइबल इनविटेशन से भरी हुई है। आपको मालूम बाइबल एंड कैसे होती है? प्रकाशित वाक्य के एंड में लिखा है, यही है कि जो प्यासा हो वो आए और जीवन के जल के झरनों में से मुफ्त पिए, मुफ्त पिए। ये सेंत मेत में दिए गए हैं। जो नीचे लोग बैठे हैं वो बेशक इस पे प्राइस टैग लगाएं, लेकिन ये फ्री में दिए गए हैं। क्यों ये मुफ्त में हैं? क्योंकि पृथ्वी का कोई खजाना इनका मूल्य दे नहीं सकता। ये अनमोल है। हालेलुया। प्रभु जानता है हाउ ड्रास्टिकली वी फॉल शॉर्ट। हम उसे प्लीज़ नहीं कर सकते अपने यत्न से, अपनी नेचुरल एबिलिटी के द्वारा, अपने फ्लैश में उसे खुश नहीं कर सकते। इसलिए इब्रानियों 11 में लिखा, विदाउट फेथ इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्लीज़ गॉड। विश्वास के बगैर परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। और ये विश्वास हमें स्वर्ग से मिलता है। पिता स्वर्ग से ये विश्वास को बीज के रूप में हमारे अंदर डालता है। ये विश्वास भी हम अपने आप में पैदा नहीं कर सकते। तो निमंत्रण कितना ज़बरदस्त है। लेट अस देयरफॉर कम। हालेलुया। इन्विटेशंस हैं परमेश्वर के, अद्भुत इन्विटेशन। कम ही सेज, ऑलवेज ही सेज कम 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 कम, कम टू मी, कम टू मी। सेटन क्या करता है? शैतान हमेशा आपको आपके पास्ट में ड्रैग करता है, या शैतान हमेशा आपको आपके टुमारो के लिए चिंतित करेगा। ये नाव में अभी इस घड़ी इसी पल परमेश्वर आपसे कह रहा, आजा मेरे पास आ, राइट नाउ। वचन में लिखा, अगर आज तुम उसकी आवाज़ को सुनो तो अपने दिलों को कठोर मत करना। वो क्यों मारे गए बियाबान में? मैंने आपको बताया था एक मैसेज, 5 वार्निंग जो प्रभु ने उनको दी। उनमें एक थी सख्त दिली, कार्डिया सक्लोरोसिस। तुम्हारा दिल सख्त हो जाएगा। सख्त दिली के कारण वो नाश हो गए। वो प्रभु के पास नहीं आए जब प्रभु ने उन्हें इनविटेशन दिया। ये आज है, इट इज़ नाउ। अगर आज तुम उसकी आवाज़ को सुनो तो अपने दिल को कठोर मत करना। ग्रीक में आज के आगे एक प्रेपोजिशन है मेटा, विच मीन्स राइट नाउ। परमेश्वर की एक इटर्नल नाव है जिसके अंदर आपको उसके चरणों में आना है। और कैसे आना है? कम बोल्डली। हालेलुया। बोल्डली, दिलेरी से प्रभु के आगे आए। टेक गॉड एट हिज वर्ड। ही हु स्पेयर्ड नॉट हिज सन, his only begotten son, but gave him up for us, why will he not give all things that we need? Peter says he has already given us all things that pertain to life and godliness, so that we might escape the corruption that is in the world because of sin, and we might become partakers of the divine nature of God. उसने अपने निज पुत्र को नहीं रख छोड़ा, वरन उसको हमारे लिए दे दिया, तो वो बाकी की भौतिक चीज़ें हमें क्यों ना देगा? पतरस अपनी पत्री में लिखता है, उसने हमें अपने कलाम के अद्भुत अनमोल वायदे दिए हैं। उन कलाम के अनमोल वायदों के द्वारा हम पाप से जो करप्शन होती है, पाप की जो सड़ांध और गंदगी है, उससे हम बच सकते हैं और हम यीशु मसीह के स्वभाव में तब्दील हो सकते हैं। हमारा स्वभाव यीशु मसीह के जैसा हो सकता है। उसके सन्मुख आएं राइट नाउ। किस लिए? सो दैट यू मे ऑब्टेन मर्सी। आप परमेश्वर से मर्सी,
मर्सी, करुणा, करुणा, करुणा मांगे। मैं विश्वास करता हूँ आप में से कोई भी परमेश्वर का जस्टिस नहीं चाहेगा। परमेश्वर का जस्टिस रौंद देगा मनुष्य को, पाप में डूबे मनुष्य को रौंद डालेगा परमेश्वर का जस्टिस। तो परमेश्वर की मर्सी, सो दैट वी में ऑब्टेन मर्सी। मैं अब आपको बताना चाहता हूँ कि जो बाइबल में मैंने आपको बताया, क्रॉस के लिए वर्ड है स्टोरोस, लेकिन बाइबल की अगर आप डीप स्टडी करेंगे तो स्टोरोस जो क्रॉस है, इसका मतलब वुडन लॉग होता है। एक ट्री, एक लकड़ी का ट्री, एक ट्री का टुकड़ा, वुडन लॉग। ये क्रॉस जैसा हम देखते हैं, एक सीधी बार है, उसके ऊपर एक वर्टिकल बार है, एक हॉरिजेंटल बार है, ऐसा नहीं है। ये एक वुडन लॉग था, सीधा बड़ा वुडन लॉग, ट्री, लकड़ी का हिस्सा, जिसके ऊपर ऐसे यीशु मसीह के हाथ ऊपर उठा के, उसके हेड के ऊपर ऐसे उसके दोनों हाथ ऊपर उठा दिए गए थे और उसके दोनों हाथों को क्रॉस कर दिया गया था, और वहाँ पे उसकी रिस्ट में नेल ठोंकी गई थी। और ये वुडन जो पीस था बड़ा लकड़ी का, इसके ऊपर एक लकड़ी का टुकड़ा लगा था छोटा सा, जहाँ पे जो क्रूस पे चढ़ाया गया वो अपने पाँव टिका सकता था। एक स्ट्रेट पूरा तीर है लकड़ी का, वुडन लॉग है, उसके ऊपर क्रूस चढ़ाया जाता था। जो हम देखते हैं ना, ऐसा दो लकड़ी के डंडे लगे हुए, ऐसा क्रूस नहीं था। अगर आप इसकी डीप रिसर्च करेंगे, मैंने इसकी बड़े साल रिसर्च की है और इसके बहुत से एविडेंसेस हैं, आर्कियोलॉजिकल, हिस्टोरिकल, थियोलॉजिकल, मैं सभी आपको पेश कर सकता हूँ, इवन क्लिनिकल एविडेंसेस, कि ये लकड़ी का एक बड़ा पीस था और इस लकड़ी के बड़े पीस पे उसके हाथों को ऐसे क्रॉस कर दिया गया था। जो राइट हैंड वो लेफ़्ट की तरफ चला गया, लेफ़्ट राइट की तरफ चला गया। हालेलुया। ये वही तस्वीर है जब हमारा पुरखा याकूब अपने हाथों को क्रॉस करके ब्लेसिंग देता है। हालेलुया, हालेलुया। बड़े की बरकत छोटे पे आ गई। बड़ा बेटा आदम था पहला, और आखिरी आदम यीशु था। हालेलुया। वो क्रॉस कर दिए गए क्रूस के ऊपर, और वो लकड़ी जहाँ पे क्रूस पे चढ़ाया व्यक्ति अपने पाँव टिका सकता था, उसे कहा जाता है मर्सी सीट, करुणा की वेदी। ये करुणा की वेदी वचन में लिखा है, यहोवा का एक सिंहासन है जिसे करुणा की वेदी कहा गया है। स्वर्ग में बहुत से थ्रोन हैं जहाँ पे जजमेंट होती है। आप वहाँ नहीं जाना चाहते। यू वुडंट लाइक टू गो देयर। यू वुड कम बिफोर द थ्रोन ऑफ ग्रेस एंड मर्सी। करुणा की जगवेदी के पास आएँ। कैसे? दिलेरी से। पुराने नियम में वचन में लिखा था, डरते और कांपते हुए यहोवा की हजूरी में आओ, लेकिन अब मेमने के लहू के द्वारा आप दिलेरी से आ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसने हमें डंग हिल से, कूड़े के ढेर से उठाया है और उसने अपनी रॉयल बैंकुटिंग टेबल पे हमें बिठा दिया है। हालेलुया। अगर ये सृष्टि का रचिता स्वामी, जिसकी आंखों के आगे, जैसे 13 वचन में, इब्रानी 4:13 में लिखा, सब कुछ नंगा है और बेपर्दा है, कुछ भी चीज़ उससे छिपी नहीं है, वो हर चीज़ को जांच रहा और देख रहा है। अगर वो अपने न्यायाधीश के सिंहासन पे बैठ के न्याय करेगा तो एक भी बच नहीं पाएगा। वरन उसने अपनी करुणा की जगवेदी पे, करुणा की सीट पे, हालेलुया, वो हमें कहाँ लाता है? हालेलुया, थ्रोन ऑफ मर्सी एंड ग्रेस। हालेलुया। इस थ्रोन के पास जाइए आप दिल में जब चाहे जा सकते हैं, यीशु मसीह के लहू के द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर हमें यहाँ लाता है, ट्रांसफॉर्म करता है पवित्र आत्मा के द्वारा, होली स्पिरिट की सामर्थ के द्वारा और अपने अनुग्रह के द्वारा। आपको मालूम, आपको अनुग्रह देता है जो कुछ आपको चाहिए, वो केवल अनुग्रह से मिलता है। इसलिए आओ हम करुणा की जगवेदी के पास आएं, करुणा के थ्रोन के पास आएं। हालेलुया। बाइबल में बहुत से थ्रोन हैं। इज़िकियल 1:26 पढ़िएगा, मूविंग थ्रोन ऑफ गॉड है, जिसे लिविंग क्रीचर लेके घूमते हैं। यहोवा जहाँ चाहे वहाँ अपने इस थ्रोन को लगाता है। ये यहोवा की सुप्रीम कोर्ट है, मोबाइल सुप्रीम कोर्ट है।
और यहोवा का सिंहासन है। इज़िकियल नबी की पुस्तक 1 अध्याय का 26 वचन पढ़िए। इज़िकियल नबी देखता है कि लिविंग क्रीचर उड़ते हुए आकाश में यहोवा के सिंहासन को कहाँ ले आए हैं? बाबुल में। क्योंकि यहोवा के लोग कहाँ पे हैं? कैप्टिविटी में, बाबुल में हैं। तो बाबुल के खितिज पे, आकाश पे वो आत्मा के दर्शन में देखता है कि यहोवा का ये सिंहासन लगा हुआ है। यहोवा ने न्याय किया है अपनी प्रजा का, उनको दंड दिया उनके पाप और उनकी बदकारी का, लेकिन उसने उनका परित्याग नहीं किया है। यहोवा आपको दंड देगा, सजा देगा, आपको आपका विनाश करने के लिए नहीं, इसलिए कि आप उसकी ओर लौट आए। ये मूविंग थ्रोन यहोवा अपना जहाँ चाहे वहाँ ले जा सकता है। लिविंग क्रीचर उसके इस मूविंग थ्रोन को, ये ब्रह्मांड के तुल्य है, इतना बड़ा है ये मूविंग थ्रोन। पढ़िए इज़िकियल नबी की पुस्तक में, दानियल 9 अध्याय के अंदर आप देखते हैं एंशंट ऑफ द डेज बैठता है थ्रोन पे, प्राचीन सिंहासन पे, अद्भुत अलौकिक दुधिया प्रकाश से भरा हुआ, ट्रांसल्यूसेंट ग्लोरी से भरा हुआ ये सिंहासन है जिसके ऊपर एंशंट ऑफ द डेज बैठा है। मैन काइंड को जज किया जाता है, पुस्तकें खोली जाती हैं। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती 19:28 उसकी महिमा का सिंहासन। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय के 11 वचन में ग्रेट वाइट थ्रोन, सब उसके आगे खड़े किए जाएंगे। पृथ्वी पे जितने पैदा हुए, आप वहाँ जाना नहीं चाहते, न्याय के लिए नहीं, पर आप वहाँ पहुँचेंगे विटनेस के तौर पे, गवाही देने के लिए। हालेलुया। आपको मालूम, मैनकाइंड ने जितने बच्चे मार दिए, अबॉर्ट कर दिए, बिलियंस ऑफ देम, दे ऑल विल बी स्टैंडिंग देयर, दे ऑल विल बी देयर। आपको मैंने पहले भी बताया, वैज्ञानिकों की जो टेक्नोलॉजी है क्रिस्पर कैस9, CRISPER-CAS9 न्यूमेरिक 9, जिससे आप DNA को एडिट कर सकते हैं। जो अमीर लोग हैं वो डिज़ाइनर बेबी चाहते हैं। इससे पहले कि औरत प्रेग्नेंट हो, वो अपने जीन्स को एडिट करते हैं, रीसीक्वेंस करते हैं, ताकि उनको जैसा बच्चा चाहिए, उसका चेहरा ऐसा हो, नाक ऐसी हो, मुंह ऐसा हो, आंखों का रंग ये हो, बालों का कलर ये हो, स्किन का कलर, सब कुछ डिज़ाइन किया जा रहा है। डिज़ाइनर बेबीज़ कहते हैं उनको। बल्कि वो आपको बता देंगे पूरा कंप्यूट करके, आपके जीन की स्टडी करके, कि आपका जो बच्चा है 20 साल की एज में कैसा दिखाई देगा। तो जरा सोचें, वो सब बच्चे जिनको लोगों ने मार दिया, कोख में बुच्चर किया, वो सब यहोवा के सिंहासन के आगे खड़े हैं जलाल में। हालेलुया। It is not about killing one child. Inside the child there is seed, or either there is seed or there are eggs, and inside the eggs or the seed there is a generation. Toldoth Greek में Hebrew word है toldoth, generations हैं उसके अंदर। So you are doing genocide. You're not killing one child, you're killing a generation. समझ रहे हैं आप क्या कह रहा प्रभु का कलाम? हालेलुया। थैंक यू जीसस। जस्ट इमेजिन हाउ डीप इज द वर्ड ऑफ गॉड। कितना गहरा है यहोवा परमेश्वर का कलाम। थैंक यू जीसस। Repent of any such sin in your life. Bring it before the Lord. Seek His pardon. Seek Lord's forgiveness. Ask the Lord to cleanse you and pardon you lavishly. Hallelujah. तो क्या लिखा है? 16 वचन फिर से पढ़ता हूँ। Let us then fearlessly and confidently and boldly draw near to the throne of grace. अनुग्रह के सिंहासन के आगे आइए, प्रार्थनाएं कीजिए, मुंह खोलिए अपना, प्रे प्रे। आज बहुत सी सभाएं जिनका नाम होता है प्रेयर मीटिंग, लेकिन प्रेयर नहीं होती वहाँ पे, केवल चिट चैट टॉकिंग होती है, बातें ही होती हैं, प्रेयर नहीं होती। प्रार्थना करें, पुकारें, चिल्लाएं प्रभु के आगे,
और कंसिस्टेंटली पुकारें। डू नॉट क्विट प्रेइंग। लूक 18 में यीशु मसीह यही सिखाते हैं, मैन ऑट नॉट टू फेंट एंड मैन ऑट नॉट टू लूज हार्ट बट दे शुड ऑलवेज प्रे। और उस विडो की स्टोरी बताते हैं प्रभु। लेट्स प्रे, लेट्स रियली रियली प्रे, लेट्स आस्क द लॉर्ड टू गिव अस ए लाइफ ऑफ प्रेयर। आपकी प्रेयर लाइफ आपकी लाइफ ऑफ प्रेयर बन जाए। प्रार्थना करें, उसके थ्रोन के आगे हैबिचुअल बन जाएं, उसके थ्रोन के आगे आना, बार बार बारंबार बारंबार उसके थ्रोन को एक्सेस करना, उसके थ्रोन के सन्मुख आना और उसके थ्रोन से चिपटे रहना 24/7। pouring out your heart, crying out vehemently and really really praying deeply. Let us do this. Let us not have a superficial type prayer life. ये ना हो हमारी केवल दिखावटी बनावटी, हमारे बाप तुझे आसमान में कादर मुतलिक खुदा। Don't do that. सिंसियरली अपने हार्ट को पोर आउट करें परमेश्वर के आगे। ही इज़ योर रेस्ट, फाइंड योर रेस्ट इन हिम। हालेलुया। एंड ही सेज आई विल शो दी द थिंग्स दैट thou knowest not। मैं तुझे वो बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।